نہیں مینٹلی ڈسٹرب کبھی بھی نہیں ہو سکتا حارث کھوکر ڈاکٹر نبیہ کے ساتھ ہو یا ان کے بغیر ہو. ہم مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوں گے, مینٹلی ہم اسٹرانگ ہیں. ٹھیک ہے, ہم فزیکلی مینٹلی ہر طرح سے جو ہے وہ اسٹرانگ ہے اور ہم مضبوط رہیں گے. ہم نے بڑے بڑی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, ہم جرنلسٹ ہیں. Okay, let's go. دوستو میں ہوں لیلا اور میں ہوں افضل. دوستو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے سب کے ہر دل عزیز جوڑی, اب آپ یہ نہ سمجھنا تبلے کی جوڑی یا کسی پوریوں کی جوڑی یا کسی اور, یعنی کہ ہمارا بھائی حارث کھوکر مرغیوں کی جوڑی اور اس کی بیوی ڈاکٹر نبیہہ صاحبہ. اچھا تو دوستو ہم نے پچھلے آپ کو پوڈ کاسٹ میں اس کے بارے میں بتایا, جس پوڈ کاسٹ میں گئی تھی ذرائع سے پتہ چلا ہے, خواجہ سرا والے, وہ جی خواجہ سرا والی, کہ ذرائع نے بولا ہے کہ یہ دونوں جوڑی جو ہے نا, ہم دعا کرتے ہیں ہر جوڑی خوش رہے, بالکل, لیکن اندر کی کہانی ایک دوسرے سے اکتا چکے ہیں. آپ پہلے سنیں آپ کے یہ کیا کہتی ہے ڈاکٹر نبیہہ. ڈاکٹر نبیہہ گئی تھی ایک پوڈ کاسٹ میں, وہ خسرے کے پاس. تو میں تو پہلے فریہ نام نہیں اس کو اس وجہ سے نہیں جانتے, اس وجہ سے جانتے ہیں لڑکی بکرا کھائے گی تو کیا لگے گی بھائی, کیا لگے گی, بلا ہی لگے گی. تمہاری طرح تم تو خسرے ہو, تم تو عورت ہو ہی نہیں. اپنے آپ کو کہتی تزئینیگار جنگوں والی. بھئی اگر جنگ انہوں نے بم مارا تو پھر ہم نے بھی بم مارا, ویسے تم تجزیہ کون سی کرو گے اس پہ. مجھے تو یہ حیرانی ہے کہ ہمارے ملک کے دفاعی ادارے اب ایسے خسروں سے ہماری تشریح کریں گے اور جنگوں پہ بات کریں گے. کوئی مرد نہیں ہے ان کے پاس. بات صحیح ہے نا, ایسے ہی ہیں, تو اس لیے تو ہمارے ملک کا یہ حال ہے. اچھا کہ نہ کوئی اصول ہے. اچھا لیکن ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی. ہاں بالکل. اب ڈاکٹر نبیہہ کو کیا ضرورت تھی اس کی پوڈ کاسٹ میں جانے کی؟ اس لیے کہ وہ مشہور ہونا ہے نا. اچھا تو وہی جا کے پھر لوگوں سے گلے بھی کرتے. پہلے آپ لوگ ان کی ویڈیو دیکھیں, پھر ہم آپ کو پوری سٹوری بتاتے ہیں. ہاں جی دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہے. میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوں کہ اگر میں کوئی پوڈ کاسٹ دے آتی ہوں یا میں اس میں کوئی بات کر آتی ہوں تو آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ فوڈ مل جاتا ہے, اور اس پر جو ہے وہ سارے کیڑیوں کی طرح جو ہے وہ چمڑنا شروع کر دیتے ہیں. سارے کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں, برساتی جیسے مینڈک نکلتے ہیں ویسے جو ہے وہ یہ آپ میری تصویریں لگا کے بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. مطلب میری زندگی کی غلطی, میں انسان ہوں, میں غلطیاں کر کے ہی سیکھوں گی ظاہر ہے. ویسے اس نے کہا, ویسے ہم نے تو اس کے حق میں بات کی. جب نہیں میں تو کبھی ابھی اس کے حق میں بات اس لیے نہیں کرتا, میری بات سنیں. اس نے ہمیں چھوڑ دو, ہم کس پاسے میں ہیں ان کی. انہوں نے تمام سوشل میڈیا کے لوگوں کو کہا کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح تم لوگوں کو فوڈ مل جاتا ہے. پہلے تو بیوی اپنی زبان درست کرے. کیڑے مکوڑے ہوں گے تمہارے خاندان والے اور تمہارے ہسبینڈ کے خاندان والے. لوگ کیڑے مکیڑے نہیں, کیڑے مکوڑے, لوگ انسان ہیں. تو جب انسان ہے, جب آپ ایسے کوئی عجیب سی بات کرتے ہو نا تو لوگ اس پہ بات ضرور کریں گے. ابھی آپ سوشل میڈیا کانٹینٹ ہو, ورنہ آپ پوڈ کاسٹ میں گئی آپ نشر ہی نہ کرتے, تیرے پیچھے کوئی پڑتا ہی نہیں, تو تم کیوں گئی. اور دوسری بات اس کے شوہر کی سنیں. پہلے شوہر کی بات میں سناتے ہیں, پہلے سناتے ہیں جو خوبصورتی کے بارے میں بات کی. ہاں بھائی کس کس کو تکلیف ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ جی میں خوبصورت ہوں. کوئی تکلیف نہیں بھائی, آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ. آپ لوگوں کو میں نے نہیں بتایا کہ میں خوبصورت ہوں یا نہیں ہوں. مجھے پتا ہے میں خوبصورت ہوں یا نہیں ہوں, اور مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ ایز اٹ از اٹھا کے لگاتے نہیں ہوں, بس اس کے اوپر جو ہے وہ بحث و مباحثہ, فضول بدتمیزیاں. اگر میں نے اپنے کریکٹر کی بات کی ہے تو میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور میں نے اگر یہ کہا ہے کہ بھائی میرے جیسا کریکٹر جس خاتون کا ہوگا وہ اپنی کریکٹر پر اس کو ناز ہونا چاہیے. یہ بات تو ٹھیک ہے, کریکٹر پہ تو ہم نے بات نہیں, کریکٹر پہ ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے, کسی کے کریکٹر پہ ہم بات نہیں کریں گے. ہم نے نہیں کی, کسی اور نے شاید کی ہوگا. دیکھیں یوٹیوبر, لیکن اس کی خوبصورتی والی بات میں کہہ رہا ہوں, تو میں کہہ رہا ہوں بی بی تم خوبصورت ہو یا نہ ہو, اس سے ہم پاکستانیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ تم خوبصورت بھی ہوگی تو بھی اپنے گھر کی ہو, اور اگر نہ بھی ہو تو بھی اپنی گھر کی ہو. لیکن تمہارے شوہر نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے, پہلے ہم دوستوں کو وہ ویڈیو سناتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہاں جی, کہ کیا یعنی کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا نہیں پتا کہ کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, جرنلزم کیا پروگرام کر رہے ہیں کیا نہیں. یہ پتہ نہیں کون سے پارک میں نا ایک کھکھر کھادی آواز والا بندہ اس کو لے کے بیٹھ گیا. اچھا, یہ جب گھر سے نکل رہی تھی صبح اور تیار ہو رہی تھی خوبصورت لڑکی, تو یہ خوبصورت لڑکی سے حارث کھوکر بھائی آپ پوچھ لیتے کہاں جا رہی ہو, کس کے پاس جا رہی ہو. اور پھر یہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے, تو پھر تم شروع ہو گئے. نہیں یہ جو شروع ہو جاتا ہے, دیکھیں نا کیا کہہ رہا ہے یہ. میں نے کبھی ریلیشن شپ پہ بات نہیں کی جی,
किसी के रिलेशनशिप पे बात नहीं की, अपने रिलेशनशिप पे बात नहीं की। पहले भी मसला हुआ वो फिजा अली वाला, मैंने तब भी कहा था कि मैं कभी पहल नहीं करूंगा, लेकिन अगर पहल होगी तो मैं अपना मौकफ दूंगा, मैं अपने दिफा का हक हासिल रखता हूं। मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो बनी है, मेरे दोस्तों ने, अजीजों कारिब ने, रिश्तेदार ने मुझे भेजना शुरू की, मैंने उस वीडियो को देखा तो वो मोहतरमा सवाल करती हैं और कहती हैं कि आपकी जिंदगी का वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी, मुझे नहीं पता। तो वो कहती हैं कि मैं अज्यूम कर लूंगी शादी। देखें फिर वही वाली बात ना, फिजा अली वाली, यानी कि वही चीजें दोहराई जा रही हैं। होस्ट दिल में क्या था इनको नहीं पता, इतनी अंडरस्टैंडिंग से शादी हुई है, लव मैरिज हुई है, बकौल इनके 5-6 साल से पहले इन दोनों के आपस में बातचीत थी, उसके बावजूद भी इनको ये नहीं पता कि डॉक्टर ने बिया लगाई हुई है। कभी मेरी बीवी, मेरे भाई आप जर्नलिस्ट हो, जर्नलिज्म करते हो, आप कहते हो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। तो दूसरी तो बात ये कि आपकी बीवी जब आपके घर से बाहर निकलती है तो पहले उनके बारे में पूछ लिया करें कि कहाँ जा रही है, कि कहाँ जा रही हो, किसके पॉडकास्ट में जा रही या हो, फिर आपकी मिली जुली भगत है। लेकिन वहां से वो बयान देती है, सोशल मीडिया में आती है। अच्छा फिर ये कहता है कि हमारी निजी जिंदगी में बात ना करे कोई। भाई तेरी बीवी वहां वो बयान दे रही है, यहाँ बैठ के तू ये बयान दे रहा है। खुद भी तो कह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को तुम लोगों ने पागल समझा हुआ है। अच्छा अब आगे देखें आगे क्या करे। लेकिन अगर पहल होगी तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, फिर चाहे सामने कोई भी हो। तो बात यह है कि उन्होंने अब वल्लाहु आलम, ठीक है, दिलों के राज अल्लाह जानता है कि डॉक्टर नबिया के दिल में क्या था, ठीक है, दिलों के राज तो अल्लाह जानता है ना, मैं तो नहीं जानता। वो उसके हंसने पे हंसी पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, आई डोंट नो, लेकिन मुझे गुस्सा आया, ठीक है, मुझे शदीद गुस्सा आया। और फिर मैंने अपना, जब तक जो है वो वीडियो नहीं बना ली, मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, मैंने अपने गुस्से का इजहार कर दिया। देखिए पहल वहां से हुई, मेरी तरफ से आज तक पहल नहीं हुई और ना होगी, ये मेरा वादा है कि मेरी तरफ से पहल नहीं होगी। लेकिन ऐसे सवाल बनते नहीं है ना, पॉडकास्ट करें, कोई जो है वो एजुकेशन की बात करें, कोई माशरे की बात करें, कंस्ट्रक्टिव बात। वो कह रही है कि स्पेस क्यों देते हैं एंकर्स को, कि एंकर्स आप पर बात करें। भाई वो खुश हो रही है डॉक्टर नबिया से जब उसने पूछा, खुसर फुसर ने, कि भाई तुम्हें डिजिटल खुसरा उसका हमने नाम रखा है, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या है, और खुद ही उसने कहा कि कहीं शादी तो नहीं। तो उसमें तो तुम वहां पे तुम्हारी डॉक्टर नबिया वहां पे ये कह देती कि भाई ये बात काट दें। देखो पोस्ट कार्ड जो होते हैं ना, पॉडकास्ट, उसमें रजामंदी होती है, बिल्कुल, कि मैं आपसे सारे सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देने। तुम उसको कहती कि यहाँ पे रुकवाओ, एडिट करो इसे। भाई मेरी शादी को लेके मेरे पे सवाल ना करो, मैंने जब नाम नहीं लिया तो तुम क्यों ले रही हो। वायरल होने के अलग अलग तरीके हैं। तो ये मियाँ बीवी जो है ना, वो जो जिस तरह हकीम बाबर है और उसकी बीवी है, तो ये जर्नलिज्म वाला भाई और जो दूसरों खवातीन की लीडर बनी हुई है ना आजकल, जो कहती है कि मैंने तो माशरे को ठीक करना है, पहले भाई तुम दोनों अपने घर को ठीक कर लो। अब आगे देखिए। अच्छा इसको गुस्सा आया, भाई मुझे भी जब तुम पे अब गुस्सा आएगा ना तो मैं लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। भाई बंदा बीवी के मुंह पे तो चित्तर मारे, गुस्सा आया तो तुमने वीडियो बनाया, ये कौन सा गुस्सा है। आगे सुने जरा, फिर करते हैं बात। ये व्यूज का रोल है, वो मेरे पे बात करके व्यूज लेते हैं। थंबनेल में मेरी जो है वो निकाह की तस्वीर लगाई है। स्पेस तो तब हम दें जब हम उन पे बात ना करें। हमने तो जवाबी वार किया है और हम आंख हासिल रखते हैं कि हम पे कोई तीर फेंकेगा तो फिर हम जो है वो 10 तीर फेंकेंगे। सर मुझे मेंटली भी आज डिस्टर्ब लग रहे हैं। इस वक्त स्टेटस क्या है डॉक्टर नबीहा से? लगता है कि इस भाई ने, मैं सुनाती हूँ भी, इस भाई ने लगता है कि मछली खा के ना ऊपर से ठंडा पानी पी लिया है। अच्छा तीर बरसा रहे, कौन से तीर है भाई? ये भाई जो इसका इंटरव्यू कर रहा है ना, मुझे तो लगता है नहीं, दूसरी बात ऐसे सुनो, जर्नलिज्म वाले कैसे बातें करते हैं। चलो हम ये बात कह देंगे कि हम जर्नलिज्म से दूर से कोई हमारा रिश्ता नाता नहीं है। ये जो इसका बैठा बात कर रहा है ना, अच्छा सुनिए, इसने यहीं से कहीं से पकड़ा है। अच्छा सुनो, जब हम भी तीर बरसाए जाएंगे तो फिर हम भी तीर भैया यहाँ पे कोई जंगे हिंद चल रही है, तीरे बरसा रहे हो। पहले आप देखिए इसकी कैसी आवाज है, जो पकड़ के लाया ये इंटरव्यू लेने वाला, ये इसके बाद देखे ना, इसने जरूर 200 ठंडी मछली, गर्म मछली खा के ना ठंडा पानी पिया, इसके गला सुनाए इसका एंड सुनाए। अब देखिए ये आप क्या कह रहा है, ये जो है हारिस कुकर नाराजगी है, जरा प्लीज क्लियर करें। नहीं, मेंटली डिस्टर्ब कभी भी नहीं हो सकता हारिस खोकर, डॉक्टर नबिया के साथ हो या उनके बगैर हो। हम मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे, मेंटली हम स्ट्रांग है, ठीक है। हम फिजिकली, मेंटली हर तरह से जो है वो स्ट्रांग है और हम मजबूत रहेंगे।
आप जर्नलिस्ट हमने बड़ी बड़ी चीजें देखी हुई हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, बता हमने रहे हैं कि मैं फिजिकली भी बड़ा मजबूत हूँ, फिजिकली पे बड़ा जोर भाई दिया है। फिजिकली हमने आपसे और पूछा है वो तो खोकर भाई, हमें पता है कि आप हकीम लोहा पाड़ के पास जाते रहे। हकीम लोहा पाड़ ने कहा कि मेरे पास बेचारा नहीं, अब तो दूसरा हकीम भी है। नहीं, शादी से पहले वो कहता मेरे पास आता रहा ये, हाँ मैं इसका इलाज पता नहीं कौन सा करता वो तो हूँ। दूसरा हकीम बाबा ठीक भी है? अभी निकला है, एक तो ठीक बाप है? ही खत्म नहीं हो रहे भाई। अच्छा, अब इसने ना फिजिकली पे भी बड़ा जोर दिया है, हाँ और जी। उसने कहा मैं उसके बगैर भी, इस बात पे गौर करें कि नबिया के बगैर भी बड़ा मैं स्ट्रांग हूँ। हाँ जी, यानी कि बगैर नहीं भी तो क्या फिजिकल मतलब, तो नहीं यहाँ सवाल बनता ही नहीं है। देखिए, वो- नहीं उसके बगैर भी पे गौर करें ना, यानी कि इनकी वही मैं जो आपको बात कर रही हूँ कि अनकरीब सेपरेशन होने वाली है, बिल्कुल। तो जो अंदरूनी ज़राए ने मुझे बताया है। क्योंकि जिस तरह ठीक ये है? मीडिया में अपने आप को पेश कर रहे हैं ठीक है दोनों ना? ना, बीवी एक बात कर रही है, हाँ, शौहर दूसरी बात तो कर ये रहे हैं। जो, हाँ बिल्कुल, जैसे कि अब ये कि दोस्तों कर रहे हैं ना बातें, इसी तरह ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इनकी इसकी भी मैं बात आपको बताऊंगी जो डॉक्टर नबिया ने किसी जानने वाले को, करीबी को कही है कि इस आदमी का क्या करतूत है। ये जो आदमी है हारिस खोखर, कितना कि ये वाकई ये फिजिकली बड़ा स्ट्रांग है, इसके बताएंगे हम कहानी, इसकी कहानी, ठीक है। और जरा इनके हो जाए मामला हल आपस में लड़ाई झगड़े का, क्योंकि जो उसने बात की ना इस पर आप जरूर गौर कीजिएगा। जो उसने कहा नबिया के साथ हूँ या बगैर हूँ, मैं बड़ा सट रहा हूँ, तो ये भाई आपने रहो तुम दोनों तो आपस में दोस्तों रहो। आपने जरूर बताना है, अपनी राय जरूर देनी है। हमें उसकी खूबसूरती पे कोई एतराज नहीं, डॉक्टर नबिया की, हर बंदा अपने तई खूबसूरत है, ठीक है, चाहे वो जो भी है खूबसूरत है। लेकिन डॉक्टर नबिया ठीक को है? नहीं जाना चाहिए था, वो खुसरा नया नया वायरल हुआ है। वो चली गई, तुम कोई मुंह बात उठा के तुम क्यों चली गई? तुम्हें पता है ये तो डिजिटल खुसरा नहीं। है, तो बात ये तो कि फिर तुम क्यों गई उसके पॉडकास्ट पे? बात ये है कि अंदर से ये भी खुश नहीं हारिस खोकर पर। अच्छा, अब हारिस खोकर के बारे में कोई भी उससे ये कहता है कि ये तुम्हारे लेवल का नहीं है आदमी, तुमने इससे शादी क्यों की है, ये तो आदमी नहीं। जब यानी कि पीछे इंटरव्यू के पीछे बिहाइंड द सीन ये बातें होती हैं, तो जाहिर है उसको भी शर्मसारी होती है कि मैं शादी कर बैठी हूँ, व्यूज भी आ गए हैं शादी के, और ये बंदा भी ठीक नहीं है खुद। तो बात यह है कि हमने तो हमेशा यही बंदे के बारे में बात की, और यूट्यूबर पता नहीं कौन इसके कैरेक्टर पे बातें कर रहे हैं डॉक्टर नबिया के, हमें तो पता नहीं भाई बिल्कुल। कौन बातें इसके कैरेक्टर लेकिन पे कर डॉक्टर नबिया ने भी जो ठीक ये है। बात बोला है ना हम्म। कि मैं एक पॉडकास्ट पे गई, मेरे मुंह से बात निकली और इन लोगों को एक फूड मिल गया कीड़ियों की तरह, तो मैं वो सिर्फ शायद- इस बात पे मुझे गुस्सा आया, मेरी बात सुने। वो शायद उसने उनके बारे में कहा जो उसके कैरेक्टर पे बातें कर रहे हैं, सुने मेरी बात, हम करेक्टर पे बात नहीं इसके करते। नबिया के। डॉक्टर नबिया चाहे जर्नलिज्म करे या वो क्या कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर बने, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को कीड़ियां और मेंढकें ये चीजें ना समझें। भाई तुम अभी इस मुकाम पे हो कि तुम्हारे तो खुद जिंदगी की कश्ती समंदर में यूं डल डल के चल रही है, तो तुम लोगों के बारे में ये राय रखती हो, कल को तुम और थोड़ी सी मशहूर हो गई तो मेरे ख्याल से फिर तो अवाम आपको अवाम ही नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल। वो कहते हैं ना अल्लाह ताला इसलिए बिल्लियों को फर नहीं देता क्योंकि हवा में सारे परिंदे खा लेंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर नबिया के साथ भी कुछ इस तरह ही है। बहरहाल दोस्तों, ये वीडियो था, इनकी बातों पे हमारा रद्द-ए-अमल था जो हमने दिया, क्योंकि ये खुद अपना हक रखते हैं भाई, लड़े झगड़े लोगों के पॉडकास्टों में जाएं, अपनी मियाँ बीवी के ड्रामे को पेश करे, हमें इनसे क्या लेना देना। लेकिन बात उल्टी होगी तो उस पे बात होगी। और अगर कोई सोशल मीडिया पे नहीं आता, अब मिसाल यहां से एक पिंड होगा दूर, सिंध का कोई पिंड है, वहां कोई खातून या कोई मर्द या कोई वडेरा खामोशी से अपने घर पे बैठा, उसके पास मोबाइल भी नहीं, हमने कभी उन दोनों ने उनकी बात की है? क्योंकि वो है ही नहीं। भाई जो लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं और उसका गलत इस्तेमाल और करते उसका हैं। गलत इस्तेमाल, ड्रामे क्रिएट करके लोगों को व्यूज लेने के लिए उकसाते उकसाते हैं, हैं। तो भाई उन पे बात बनती है। फिर इस पे ना कोई गिला होगा ना कोई शिकवा होगा। या तो लोग सोशल मीडिया छोड़ दे, सामने ही ना आए तो लोग बात ही नहीं करेंगे। जब तक वो सामने रहेंगे तो बात तो होती रहेगी। अब कोई इसे नेगेटिव समझ ले या कोई पॉजिटिव समझ ले, ये उनकी मर्जी है। बहरहाल दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, तब भी अपने कमेंट्स में अपने फीडबैक दिया करें, क्योंकि इनसे हमारे प्रोग्राम में आगे बढ़ने में नजरसानी होती और है। ये भी जरूर बताइएगा कि क्या ये दोनों मियाँ बीवी आपको लगता है ना कि कोई ड्रामा हाँ। शरामा कर रहे और हैं? हमारे YouTube चैनल पे एक पुरानी वीडियो पड़ी है 5-10 दिन की पहले की, कि हमने उसमें पेशन गोई की थी कि ये दोनों आपस में खुश नहीं है। तो वो वीडियो आप लोग जाके देखें। अब आसार आ रहे हैं गैर रस्मी और गैर वो क्या कहते हैं वो इलेक्शन में गैर रस्मी और गैर हतमी नताइज शुरू हो गए।
لیکن اللہ کسی کے گرد کو برباد نہ کرے. خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے اور مسکراتے رہیں. ملتے ہیں مزید ایسے ڈراموں کے اوپر ہم دونوں بات کرنے کے لیے. نغمانہ جعفری چینل کو لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب. اللہ حافظ.